बना कि देश भर के दूध पेटिए को कदम लगे ऐसे बटन मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीतर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। আজকে নির্বাচনের শেষ প্রচার। নমস্কার দর্শক বিন্দু, শিবানী এক্সপ্লোরার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শিলচর পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে আসছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের শিলচরে বিধায়ক ডক্টর রাজদীপ রায় মারমন মনোনীত প্রার্থী শ্রী রাজদীপ রায় মহাশয়ের বিজয়ের সম্মেলনী অনুষ্ঠান। তো সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন, পুরো প্রোগ্রামটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। পুরোটা অমিত শাহ, নীতিন নবীন, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, দিলীপ শইকিয়া, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো গ্রাউন্ডটা ভরে গেছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দুধ পাতিলের লোকজন বসে আছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির আসন সরকারের মন্ত্রী মাননীয় কৌশিক রায় মহাশয়, মঞ্চে আছেন আমাদের শিলচর লোকসভা আমাদের বরিষ্ঠ নেতা শ্রদ্ধেয় নেতা মাননীয় পরিমল সুব্রমণ্য মহাশয়, মঞ্চে আছেন আমাদের প্রিয় রাজ্যসভার তিনি সাংসদ মাননীয় প্রণব মুখার্জী মহাশয়, মঞ্চে আছেন আমাদের বরকলা সমষ্টির যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী মাননীয় কিশোরনাথ মহাশয়, মঞ্চে আছেন আমাদের প্রাক্তন সভাপতি ভারতীয় জনতা পার্টির উদয় শঙ্কর। কিছু এলাকার উন্নয়নের কাজে আমি আমাকে নিমজ্জিত করেছিলাম ব্যক্তিগতভাবে। আপনারা জানেন যে আমরা এই এলাকাতে একটা এফসিআই গোডাউন বানিয়েছি। এই এফসিআই গোডাউনে 20,000 মেট্রিক টন ক্যাপাসিটি আমরা খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী এখানে স্টোর হাউস হিসাবে রাখতে পারবো। আমাদের যদি ল্যান্ডস্লাইড হয়, ফ্লাড হয়, কিংবা আমরা যদি বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের কোনো কানেকশন ছুটে যায়, তাহলে আমরা এই অঞ্চলে বাজারে যাতে জিনিসপত্রের দাম না বাড়ে সেই রকম একটা ব্যবস্থা আমাদের এফসিআই গোডাউন করবে। যারা মহিলা উদ্যমিতাতে টাকা পেয়েছেন হাত উঠান। দেখেন, আমি ক্যামেরাম্যানদেরকে বলবো আপনারা একবার আপনাদের ক্যামেরা আমাদের মহিলাদের দিকে ঘোরান। আমি প্রশ্ন করেছি কারা মহিলা উদ্যমিতাতে 10,000 টাকা পেয়েছেন, দেখেন হাত ওঠানো। দেখেন আপনারা নির্ভয়ে হাত উঠান, আমরা আসো না সেই পয়সাতে ভাগ নিতে। আপনারা নির্ভয়ে হাত উঠান। বন্ধুগণ, আপনারা হাত নামিয়ে দেন। আপনারা একবার আমার প্রশ্ন,
পেরেছি। বন্ধুগণ, আজকে আসাম সরকার যেভাবে মহিলাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে মামা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই মামা বলে অভিহিত করার আজকে কারণ আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি আমরা। কেন মামা বলা হয় এটা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি আজকে শিলচরের পুলিশ স্টেশনের গ্রাউন্ডে। বন্ধুগণ, আজকে আসাম সরকার একটা থেকে একটা স্কিম করে আজকে এলাকার উন্নয়ন বলুন, ব্যক্তিগতভাবে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার বলুন, এইগুলো বন্ধুগণ আজকে কংগ্রেসের আমলে একটা সময় ছিল যে চাকরির জন্য ঘর বেচতে হতো, সোনা বন্ধক রাখতে হতো। আমাদের ছেলে মেয়েদের আশা একটা সরকারি চাকরি পাবো, এইরকম একটা পরিস্থিতিতে তরুণ গগৈ সরকারের দালালরা, মন্ত্রীরা, রাজনৈতিক কার্যকর্তারা আপনাদেরকে লুটে ফুটে খেয়েছেন। বন্ধুগণ, আমরা বলেছিলাম 2021-এ 1 লক্ষ চাকরি দেব এবং ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ওই ক্রান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা দেখতে পেলাম 1,67,000 যুবক যুবতীরা চাকরি পেয়েছে। তার জন্য 1 টাকাও কাউকে খরচ করতে হয়নি। এইরকম পরিস্থিতি আজকে পুরো আসামে হয়েছে এবং এই আসামের এই পরিস্থিতি আজকে পুরো ভারতবর্ষে উল্লেখিত হচ্ছে যে কিভাবে এইরকম স্বচ্ছভাবে, এইরকম নিকারভাবে কিভাবে এইরকম চাকরি দেওয়া হয়েছে। বন্ধুগণ, অমিত শাহ এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন। এই আইসিইউ বেড হয়েছে, 150 বেডের আইসিইউ হয়েছে। এই অঞ্চলে আমরা ভ্যাকসিন সময় মতো দিতে পেরেছি এবং অক্সিজেন সময় মতো দিতে পেরেছি বলে আমাদের স্বাগতম ভাই, স্বাগতম স্বাগতম ভাই, স্বাগতম স্বাগতম ভাই, স্বাগতম বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, মাতা কি, মাতা কি, স্বামী জিন্দাবাদ। স্বাগতম ভাই, স্বাগতম স্বাগতম ভাই, স্বাগতম স্বাগতম ভাই, স্বাগতম স্বাগতম ভাই, স্বাগতম স্বাগতম ভাই, স্বাগতম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। অমিত শাহ জি জিন্দাবাদ, ভারতের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ জি জিন্দাবাদ। এবারে অর্থনীতি বরাদ্দ করছেন আমাদের পরম সরকার ভারতীয় গৃহমন্ত্রী পরম সরকার অমিত শাহ জিকে রূপম শাহ মহাশয়। এবারে সেই ব্যাপারে মূর্তি দিয়ে বরণ করে নেবেন আমাদের আয়োজক কমিটি ইনচার্জ বিজয় চক্রবর্তী এবং সম্মিলিতভাবে সব অধিকারীবৃন্দ। এবারে কালী মূর্তি, মা কালীর মূর্তিকে উপহার দিচ্ছেন শ্রী অমরকান্তি। এবারে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছে আমাদের পরম সভার ভারতের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। मैं भाई शिक्षक वालों की आवाज को कराया। भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा अंतर, पीछे खड़े हैं वो भी उठाए, दाई और पिछाड़े दीदी को उठाए, जरा हाथ ऊपर उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीयुत वजेंद्र पांडा जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रूपम शाह जी, राज्यसभा के सांसद कनाथपुर कायस्थ जी, लोकसभा के लोकप्रिय सांसद परिवार जी, हमारे
हमारी सांसद मध्य प्रदेश की नेत्री बहन कविता पाटियाल जी, दीपायन चक्रवर्ती जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उदार गांव से हमारे प्रत्याशी राजदीप वाला जी, राजदीप आ गया, उधर खड़े हो, ताली बजाओ राजदीप के लिए। लखीमपुर से हमारे प्रत्याशी कौशिक राय जी, सिलचर के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजदीप रॉय जी, सोलन से प्रत्याशी अमिया कांतिलाल जी, कोटपुरा से प्रत्याशी किशोर नाथ जी, ये सभी को बहुत बड़े मार्जिन के साथ प्रचंड बहुमत से जिताना है। और आज इस विशाल जनसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे पहले आस्था और शक्ति के महान प्रतीक कांची काली मंदिर को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। भुवन पहाड़ पर स्थित भुवनेश्वर शिव मंदिर और सिद्धेश्वर मंदिर को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। 1961 के बंगाली भाषा आंदोलन के 11 शहीदों को मैं मौन पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और बरात रैली के महान सपूत उल्लासकर दत्ता, अरुण कुमार चंदा, शंभुधन फोंगलोस और वीणा वीराना हिंदू प्रभा देवी को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पद्मश्री से जिनको सम्मानित किया वो कविंद्र फूलदास जी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाई बहनों, आज पूरे आसाम की अंतिम रैली आज 4 बजे से प्रचार यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। 9 तारीख को आप सभी को वोटिंग कर आने वाले 5 साल के लिए सरकार तय करनी। मुझे बताओ भाई, आप सभी लोग कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा की सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बताएंगे। देखो भाई, कमल की सरकार बनानी है, मगर हमारे 5 प्रत्याशियों को विधायक बनाने के लिए नहीं बनानी है। हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बनानी है। कमल के निशान पर बटन दबाना है, आसाम को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए बटन दबाना है। कमल के निशान पर बटन दबाना है। हमारे सिलचर में आसाम का दूसरा सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए बटन दबाना है। सिलचर वालों, गुवाहाटी दूर पड़ता है या नहीं पड़ता है? अरे जोर से बोलो, दूर पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो फिर से कमल फूल की सरकार बना दो, हम गुवाहाटी के सेक्रेटेरिएट को सिलचर में लाकर आपके घर पर लाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने असम को बर्बाद करने का काम, यहां पर सैकड़ों आंदोलनों को खड़ा 1950 से लेकर 2014 तक बेरोक टोक घुसपैठ हो गई।
कांग्रेस पार्टी ने बोलो को असमी के साथ, बंगाली को असम वालों के अंदर अंदर झगड़े लगाकर हर बार अपनी सरकार बनाते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मुझे बताओ 5 साल से कहीं कम धमाका हुआ है भाई? अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? गोली चली है क्या? बंद के ऐलान होते हैं क्या? कहीं ब्लॉकेज लगे हैं क्या? ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 20 समझौते कर पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अपने असम में 11,000 से ज्यादा युवा ऑटोमेटिक AK-47 और AK-56 जमीन पर डालकर मेन स्ट्रीम में आए और असम को एक खुशहाल असम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारा असम आज विकास के रास्ते पर प्रशस्त, परंतु एक काम अधूरा। 10 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैं 16-17 में भी आया था, 21 में भी आया था और 26 में भी आया। पहले 5 साल हमने घुसपैठियों को रोकने में लगाए, यहां से रोक लिया, मगर त्रिपुरा और बंगाल से घुसते रहे। त्रिपुरा में भी भाजपा सरकार बनी, हमने उनको वहां पर भी रोक लिया। और सिलचर वालों, मेरे बंगाली भाइयों बहनों, बंगाल में भी इस बार कमल फूल की सरकार पूरे कॉरिडोर में हम घुसपैठियों को रोक कर रखते हैं। पहले 5 साल हमने असम में घुसपैठ बंद की, दूसरे 5 साल उनको चिन्हित किया और एक तीसरे 5 साल के लोग चुन चुनकर देश के बाहर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी का। भाइयों बहनों, हम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कटवाए। ममता दीदी और राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है। अरे राहुल बाबा सीए का तो विरोध करते थे, जो शरणार्थी बेंगोली भाई में आए उनको मतदान का अधिकार देने से आप विरोध कर रहे थे और घुसपैठियों का क्यों स्वागत करें? क्योंकि वो उनकी वोट बैंक। अरे आप चिंता मत करो, रोने दो ममता बनर्जी को, छातियां पीटने दो राहुल बाबा को। इस देश से एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी निकाल। इस बार विजय की तो मैं अपील करने आया हूं, परंतु जैसी तैसी विजय नहीं चाहिए। कछार की 707 सीट पर कमल फूल खिलना चाहिए, कमल फूल। सिलचर की ये रैली के बाद कछार के गांव गांव में आपका संदेश आना चाहिए कि कमल फूल खिलाइए और विकसित आसाम बनाइए। कमल फूल खिलाइए, घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाइए। कमल फूल खिलाइए और बराक वैली को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करिए। ये संदेश यहाँ से 7 सीटों पर था। मैं सिलचर का कार्यक्रम घोषित हुआ, परसों विभाग का फोन आया मेरी ऑफिस में कि अमित जी को कहना कि सिलचर को ट्रैफिक रोड मैप लेकर आ। अभिभावकों की बातें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? सिलचर में ट्रैफिक जाम है या नहीं है?
अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? हमारी सरकार ने 165 करोड़ से कैपिटल पॉइंट से लेकर रंगीन खड़ी तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय किया, जिससे फ्यूचर की ट्रैफिक की समस्या का समाधान होगा। यातायात को, ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए सिलचर बाईपास का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं और 3 ओवरब्रिज अलग अलग जगह बनाकर पूरे सिलचर को अगले 3 साल में जाम मुक्त सिलचर बनाने का भारतीय जनता पार्टी का। मैं अगली बार जब राजनीति के प्रचार में आऊंगा तब यही ब्रिज पर से रोड शो कर इस मैदान में आऊंगा। भाई बहनों, अभी बराकपुर के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुरुआत 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 उसकी शुरुआत की और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य। जैसे ही घुसपैठे रहे वहां पलायन कर दिया, हमें पलायन को रोकेंगे, घुसपैठे को निकालेंगे और जनसंख्या क्राइसिस को समाप्त करने के लिए एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी जो पलायन रोकना चाहते हैं और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो घुसपैठ कर आसाम के 7 जिले डुगरी, बरपेटा, नरन, मोरीगांव, गुंजाईगांव, नौगांव और गोलपांडा जिलों में मुस्लिम बहुल जिले बने और मैं आज आसाम की जनता को कहना आया हूं, एक गोगाई पर विश्वास किया तो फिर से आसाम में घुसपैठ शुरू हुआ। मुझे बताओ सिलचर वालों, घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भाई भैया, 1991 में इस 7 जिलों में हिंदू आबादी 38 लाख थी, अब घटकर 36 लाख हो गई है और मुस्लिम आबादी 39 लाख थी, वो बढ़कर 64 लाख हो गई। अरे राहुल गांधी के पेट का पानी नहीं, उनको तो उसने वोट नहीं दिखाई। राहुल बाबा, अंतिम बार है, घुसपैठियों का बचा खुचा वोट लेना है तो ले लो, अगले चुनाव में वोट देने के लिए हम इसको यही नहीं रखेंगे, निकाल बाहर। भाई बहनों, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अननेचुरल जनसांख्यिकी बदलाव के लिए और कुदरती जनसांख्यिकी बदलाव के लिए मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफिक चेंजेस मिशन इसकी घोषणा की है। कुछ समय में ही गृह मंत्रालय इसका नोटिफिकेशन निकालकर डेमोग्राफिक चेंज का अभ्यास करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाय बागान के श्रमिकों का हमेशा सम्मान किया है। पहले इनका श्रम एक दिन का 94 रुपया चुकाते थे, अब 258 रुपया चुकाते हैं, मगर ये बराबर नहीं है। अगले 5 साल में क्रमशः 258 को हम 500 रुपये तक ले जाएंगे, 500 रुपये तक। एथिकली ड्यूटी पार्टी योजना में 6 लाख श्रमिकों को 5,000 की सहायता दी गई, 120 मॉडल स्कूल बनाए गए और 760 चाय बागानों के 3.5 लाख श्रमिकों को भूमि का पट्टा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आसाम की धरती पर
14 फरवरी मोरान का एक दृश्य इतिहास में लिखा जाएगा। इसने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। 14 फरवरी मोरान के रोड पर, नेशनल हाईवे पर हमारा वायुसेना का फाइटर जेट उतारने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, जहां रोड नीचे वहां फाइटर जेट उतर रहे हैं। और अब जब देश पर हमला होता है तो हमारे रोड एयरपोर्ट का भी काम। और राहुल बाबा कहते हैं इसमें क्या है, पूरी भारत की कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सकता। ये हमारा संकल्प है, ये विश्वास। कई बार आतंकी हमले कर भाग जाते, दिल्ली की सरकारें चुप रही। मोदी जी के वक्त 11 साल में 3 हमले हुए, पहला उरी में, दूसरा हमला किया हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर पुलवामा में, और तीसरा हमारे टूरिस्टों पर पहलगाम। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम भारत की सेना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ पर ईद का जवाब जोड़े से देने की परंपरा हमने बनाई। सिलचर और कछार में 23,000 करोड़ से सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर गुजरात तक का बनाने का काम हमने शुरू किया है। 1257 करोड़ से भारत परिवार योजना के तहत नेशनल हाईवे 306 और मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का मां बच्चा शिशु अस्पताल स्थापित किया है। आधुनिक रोबोटिक सर्जरी का यूनिट स्थापित कर रहे हैं। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनने की शुरुआत हो चुकी है। बाढ़ और जल भराव रोकने के लिए 222 करोड़ की योजना बनाई है। रंगीन खाल चैनल की दोनों ओर सड़क चौड़ीकरण और घाट मोड़ का निर्माण शुरू किया है। हिलारा में नई सीमेंट फैक्ट्री बन रही है और वर्ल्ड लाइफ सफारी एवं रेस्क्यू सेंटर भी कछार में 200 एकड़ में बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इतने सालों तक कांग्रेस की सरकारें चली, सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, 6 थे, अभी 14 और 10 अगले 5 साल में बनाकर आसाम के हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम पूरा कर दिया। भाई बहनों, 27,000 करोड़ से सेमीकंडक्टर का कारखाना आसाम में लग चुका है और 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आसाम में आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट में हमारे युवाओं के अनुकूल नौकरी सृजित करने के लिए हर इंजीनियरिंग कॉलेज के अभ्यास वर्ग को बदल। और एक बात मैं कर जाता हूं भाई, आसाम की पहली कैबिनेट में हमारी सरकार बनाने के बाद हम यूसीसी लाए। यूसीसी का मतलब है सबके लिए एक काम, और उसके बाद पूरे आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है ना बात? अरे जोर से बोलिए, आ रही है ना? पीपल तलाक पहले से बंद किया था, 4 शादी भी बंद करके हमारी डेमोग्राफी चेंज को हम रोकने का काम करेंगे। हर किसान को 11,000 रुपया हर साल देंगे, हर माता बहन को 3,000 रुपया प्रति माह देंगे। चाय बागान वालों की मजदूरी 500 रुपया करेंगे।
केसी से पीजी तक गरीब लोगों को शिक्षा पूर्ण मुफ्त कर दी जाएगी। मुफ्त चावल के साथ दाल, चीनी, नमक भी रियायती दरों से दिए जाएंगे और 25,000 रुपया लखपति दीदी को नया धंधा शुरू करने के लिए हम देंगे। 2 लाख युवाओं को अतिरिक्त सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख बुनकरों को आर्थिक सहायता देंगे। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और 6 मार्गों पर नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे, नई एरोसिटी बनाएंगे। बाल मुक्त असम का मिशन 45,000 करोड़ से लागू करेंगे और सारे शांति समझौतों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर असम की शांति को और बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे बताओ, सिलचर बंगवा जनती दिन है, आज से माइक बंद हो जाएगा। 9 तारीख को मतदान है। कमर के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से दबाओगे। देखो सिलचर वालों, बटन तो सिलचर में कछार में दबाना है, मगर इतने खुशी से दबाना कि देश भर के ग्रुप पेटिए को करंट लगे, ऐसे बटन दबाना। मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीतर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। আজকে নির্বাচনের শেষ প্রচার আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ পুরোটা বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এটাই ছিল আজকের আমার ভিডিও। চাচি এসেছেন আমাদের শিলচরে ওনার জনসভা, যে বৃহৎ জনসভা দেখেছেন আপনারা সবাই। এই জনসভা দেখে এটা মানে নিশ্চিত যে আমাদের বরাকবেলিতে যতটি সিট আছে সবটি সিটই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি ভিউজ মার্জিনে জিতবে, এটা কনফার্ম। আজকের র্যালিতে জনগণ এটা কনফার্ম করে দিয়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া বরাকবেলিতে অন্য কোনো পার্টির আর কিছু থাকবে না। এটাই কথা, এটাই ফাইনাল কথা, আর এর উপরে কোনো কথাই নেই। ধন্যবাদ। কেমন লাগলো আপনাদের? এটাই ছিল আজকের নির্বাচনের শেষ প্রচার। আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ শিলচর এসে যে প্রচার করে গেছেন, শিলচর বিধানসভার ক্যান্ডিডেট ডক্টর রাজদীপ রায় আর উধারবন বিধানসভা কেন্দ্রে রাজদীপ গোয়ালার জন্য যে বিশাল প্রচার করে গেছেন, এটা থেকে আপনারা পুরো ভিডিও দেখতে পেয়েছেন শিবানী এক্সপ্লোরার ইউটিউব চ্যানেল থেকে। ফিরছি আরও একটা ছোট্ট ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে এসে, আবারও দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।